یہ ہو گئی. بیٹھے سی رکھیں. السلام علیکم. کیا حال ہے آپ کا؟ کیا حال ہے شری بیگم؟ گھر مل گیا؟ مبارک ہو. کتنی دور ہے یہاں سے؟ 15 منٹ بس. 15 منٹ کم ہوئے آنے میں. ہاسو تو بہت دور ہے. یہیں سے آتے تھے پہلے بھی یہیں سے آتے تھے. اچھا بڑی مصیبت ہے اتنی دور دور سے. ہاسو سے ہی آتے ہیں. آپ صرف 2 میل تقریباً تھوڑا نزدیک ہو گئے. پہلے بالکل ایئرپورٹ کے پاس تھے ہم لوگ. اچھا اب تھوڑا سا ادھر ایک ہسلو ایئرپورٹ سے پلی طرف بھی ہے وہ اور بھی دور ہے. جی جی وہ سلاؤ ہے. وہ سلاؤ ہے. اچھا مگر وہ ہنسلو کے ایڈریس پہ میں نے بتایا تھا وہ نہیں ہے وہ لڑکا جس کے جوسوں کا بھی تھا سلیمان. ہاں جی سلیمان کا. ہاں اس کا گھر ایئرپورٹ سے بڑی طرف نہیں ہے. ہاں 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 انہوں نے بلایا ہوا تھا. بڑی پرانی بات ہے. تو ہنسلو پورا کراس کر کے وہ پلی طرف ہے. پہلے ہمارا گھر ہنسلو کراس کر کے تھا. اچھا وہ گرینڈ فورٹ جگہ ہے کا نام ہے. اب ہم لوگ ہنسلو کے ادھر ہیسٹن میں آ گئے. اب ان کو یہاں نزدیک ڈھونڈ پہ دو جگہ کیونکہ انہوں نے کافی کام کرنے ہیں اب. اور ماشاء اللہ کافی ان کو ہومیوپیتھی کی آ گئی ہے سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے نا. مریض فائدہ اٹھاتے ہیں آپ سے؟ موسٹلی تو حضور آپ کے جو نسخے ہوتے ہیں انہیں سے تجویز کی. نہیں وہی صحیح وہ بھی تو سمجھ کے کرنے والے ہوتے ہیں. یہ تو نہیں ہو جاتے ہاں بلائنڈلی تو نہیں کہ نسخہ دیکھو ہو گیا. کافی اس پہ غور کرنا پڑتا ہے. جی جی اور پھر ایک بات تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں. جی جی ہر نسخہ بلائنڈلی نہیں چلتا. میں خود اپنے نسخوں میں حسب حالات تھوڑی تھوڑی تبدیلیاں کرتا ہوں. اس کیس پر یہ ایکونیٹ کی فلاں کام آئے گا یا جیسیوں کی وجہ سے سوری ہیں تو اتنا تو آ گیا نا آپ کو. جی جی ہاں جی ماشاء اللہ. اور کتنے % مریض فائدہ اٹھاتے ہیں آپ سے جن کو 1-2 پرسکرپشن میں ہی بعد میں چین کی ریلیف ہو جاتا ہے؟ خاص ابھی مڑ کے نہیں دیکھے پھر یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے بات. کہنے ہوتا تو ہے مگر پھر واپس نہیں آئے. ٹھیک ہو جاتے تو واپس نہیں آتے. ٹھیک 2 طرح سے ہوتے ہیں. آ جاؤ. آج ہمارے ایک اور نئے آ رہے ہیں کلاس میں شامل ہونے والے ڈاکٹر بشیر احمد صاحب. ان کی بیگم اور ان کی بیٹی تو ہمیشہ ہی آتی ہے. السلام علیکم. کیا حال ہے آپ کا؟ ہیں ٹھیک ٹھاک ماشاء اللہ. آپ کی طرف سے چٹھی آئی ہوئی تھی میں انتظار ہی کر رہا تھا کہ آ جائیں تو پھر وغیرہ کلاس شروع کرتے ہیں. کون ہے پیسا آپ کی بیٹی؟ جو بیٹا بیٹھی ہے ماشاء اللہ. لیتے ہیں ساتھ. اچھا سارے ہاں. آپ کے ساتھ تعلقات ہیں پیر صاحب کے؟ ٹھہرے ہوئے ہیں. ہاں اسی ٹھیک ہے. تمہارے ابا نہیں آئے آج؟ ان کا انتظار کر رہا ہوں میں. آنا یا نہیں آنا؟ عارفہ تمہارے ابا اچھا وہ قرآن کلاس میں آتے ہیں اس میں نہیں آتے؟ نہیں قرآن کی. تو پھر ٹھیک ہے. کوئی رہنے والا آنے والا رہ تو نہیں گیا آپ؟ فرد صبح تو ہے ہی نہیں ہے وہ باہر ہے. سب آ گئے آنے والے؟ آپ بھی آ گئی. کانتا باجی ہے ہی نہیں یہاں. وہ امام صاحب کے ساتھ گئے ہیں دورے پہ. اچھا یہ شروع کریں پھر بسم اللہ. خوشی کی بات یہ ہے کہ اب روزانہ خطوں میں یہ خبریں بڑی مل رہی ہیں کہ ہمیں اینٹی بایوٹک سے نجات مل گئی ہے. اتنا اعتماد بھی ہو گیا اور اتنا طریقہ بھی آ گیا ہے. کوئی بھی اب دن ایسا نہیں گزرتا جس میں خط نہ ملے کہ ایک الحمدللہ کہ پہلے جو رات کو اٹھ کے بھاگنا پڑتا تھا ڈاکٹروں کی طرف اس سے چھٹی ملی اور دوسرے اینٹی بایوٹک سے نجات مل گئی. بہت سے ایسے مریض تھے جو بچوں کو بار بار دورے پڑتے اور اینٹی بایوٹک دینی پڑتی تھی. اب وہ اسی سے کنٹرول میں آتے ہیں اور پھر دوروں کا فاصلہ بڑھ جاتا ہے اور اینٹی بایوٹک کا جو اپنا ڈیمیج ہے اس سے بچ جاتے ہیں بار بار. ٹھیک ہے. اچھا کے اوپر میٹیلی کب شروع ہو رہا تھا؟ شروع تھا. چلیں پھر کہاں تک پہنچا تھا یاد ہے؟
جی اگر प्रेगनेंसी डिलीवरी के दौरान अगर औरत अंधी हो जाए बेचारी तो बड़ी बेरहमी से कह दिया अंधी हो जाए आर्जी तौर पर नजर जाती रहे, हाँ ठीक है, टेम्परेरी ब्लाइंडनेस होती है वो, और बालों का डैमेज हो जाए तो परमानेंट होती है वो। क्यूपरम का केस वो नहीं है, मैंने ये बताया था आपको। ब्लड प्रेशर से हाँ, उसमें ओपियम देनी चाहिए। अगर हाई ब्लड प्रेशर से आर्टरी रप्चर हो गई हो तो उसका इलाज ये है ओपियम। और ओपियम में याद रखना, मैंने आपको पहले बताया था कि नहीं, कि इसको रिपीटेड डोजेज में देना इतना मुफीद नहीं है और छोटी ताकत में भी नहीं। ओपियम देनी है तो गो हाई, मैं 1000 देता हूँ, मगर मेरे ख्याल में उससे भी ऊपर जाएं। अगर ज़्यादा संजीदा केस हो तो 1 लाख दे दें। और बाद ऐसे केसेस में जहाँ डेफिनेटली ब्रेन में इंजरी की वजह से क्लॉट बना और डॉक्टर ने उम्मीद नहीं दी थी, ओपियम हाई दी है तो 2-3 दिन के अंदर इतला आ गई कि वो आसार हो गए ज़िंदगी के, और आंखें खोलनी, हाथ हिलाने शुरू कर दिए, बातें भी शुरू हो गई। एक जर्मनी वाला केस जो है मसलन, वो आने का नेट्रम से शुरू किया था और रिकवरी एक हद तक होकर खड़ी हो गई। फिर मैंने उसको ऊंची ताकत में ओपियम दी, और वो सारे वहाँ के डॉक्टरों के लिए एक अजूबा है वो बात। हमारे अहमदी लड़का वकार अमल में एकदम बेहोश हो गया। जब उसको रिमूव किया तो इब्तिदा में हमें समझता था सनस्ट्रोक हुआ, गर्मी भी थी, 2 दिन गलत इलाज हुआ। फिर उनकी तरफ से बुशर बाजा साहब की तरफ से वो बहुत फिक्र कर रहे थे, वही जिम्मेदार थे इंतजाम के। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये डॉक्टरों ने तो कहा कि ब्रेन में हेमरेज हुआ है बड़ा सख्त, और टोटल पैरालिसिस है, ना होश है, ना बात कर सकते हैं, ना कुछ हिला सकते हैं जिस्म को। तो उस पर उसने दुआ के लिए ख़ास तौर पर बहुत ताकीद की थी। उसको मुझे ख्याल आया कि दुआ तो खैर लाजिम है, हिस्सा है। ओपियम हाई दे दी जाए उनको। ओपियम हाई दी तो फिर एक फ़ोन आया, जिस फ़ोन को कभी मैंने कभी मुस्कुराता नहीं देखा जितना उस दिन देखा है। लगता था फ़ोन मुस्कुराए, मुबशर बाजा वहाँ इस तरह मुस्कुरा रहे थे कि लगता था फ़ोन हंस रहा है। कि उसने तो, मैंने सलाम कहा आपका, तो उसकी आंखें हिली और डेफिनेट रिस्पॉन्स थी, और हैरान है सारे लोगों ने भी नोट किया। फिर उसके बाद दोबारा फिर वो वहाँ ठहरा नहीं, मुसलसल फिर होश की तरफ वापस आया है। आंखें खुल गईं, मुस्कुराने लग गया, एक दफ़ा जज्बात में रोने लगा, फिर हाथ हिलाने शुरू हो गए, और अब तो अल्लाह के फज़ल से काफ़ी रिकवरी हो गई है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ओपियम ऊंची ताकत में ऐसे मौके पर बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन सिंगल डोज दें और हाई दें। उसके बाद फिर प्लम्बम की बारी आती है। वट एवर रिमेन्स कैन बी कवर्ड बाई प्लम्बम। प्लम्बम बहुत ज़्यादा लंबा असर रखने वाली दवा है, और इस किस्म के केसेस में लिंगरिंग इफ़ेक्ट्स जो है ना बीमारियों के, ला युगादिरु सक़मा जिसकी दुआ सिखाई गई है कि अल्लाह ऐसी शफा दे कि उसमें कोई भी कमज़ोरियाँ पीछे बची न रह जाएं। ला युगादिरु सक़मा, ये सक़म को दूर करने के लिए प्लम्बम इस किस्म की बीमारियों में बहुत मुफीद है। क्यूपरम का मैं आपको बता, इसी से बात शुरू हुई थी। क्यूपरम में स्पेज़म की वजह से होता है, और वो ब्लाइंडनेस ठीक हो सकती है अगर क्यूपरम दे दी जाए। अगर लंबा स्पेज़म हो जाए तो उसमें ख़तरा होता है कि वो मुस्तकिल डैमेज ना हो जाए, क्योंकि नर्व्स में एक ये बात है कि जो मर जाएं वो फिर दोबारा ज़िंदा नहीं हो सकती। इसलिए ऐसा डैमेज नहीं होना चाहिए दिमाग को कि वो बीमारी से मौत के हद में दाखिल हो चुका हो, चाहे थोड़ी जगह की मौत हो। इसलिए क्यूपरम इज ए मस्ट, इमीडिएट देनी चाहिए। ओपियम तो बाद में भी दी जा सकती है ना अगर ज़रूरत हो, क्योंकि उसका असर तो कई दिन बाद तक उसका दायरा कार खुला रहता है। क्यूपरम का फौरी है असर, और क्यूपरम दमे में भी बड़ी मुफीद है। मैं आपको बता चुका हूँ, हैं?
बता चुका हूँ, बात कहते हैं नहीं, बात कहते हैं, बता चुका हूँ। लिखा हुआ हुजूर यहाँ पे दमा में और खाली खांसी में, हाँ, काली खांसी में तो है गर्मी से डेफिनेटली, बढ़े, बिल्कुल ठीक है। ठंड से फायदा हो। काली खांसी में बहुत मुफीद है, दमे में बहुत मुफीद है। अगर स्पेज़म को गर्मी से ज़्यादा तकलीफ पहुंचती हो, स्पेज़म बढ़ता हो और सर्दी से आराम आता हो, तो फिर क्यूप्रम इज़ द मेडिसिन। अगर सर्दी से तकलीफ बढ़े और गर्मी से आराम आए तो स्पेज़म में कौन सी सबसे अच्छी दवा है? मैकफॉस, मैकफॉस। हाँ। क्रैम्प्स का बता चुका हूं आपको। क्यूप्रम और पोडोफाइलिन की क्रैम्प्स मिलती हैं बाज़ केसेस में। क्यूप्रम की स्पेज़म्स का और क्रैम्प्स का आगाज़ टमी से है, अंदर अंतड़ियों में कोई सेंटर ऐसा है जिसकी वजह से शुरू होता है ये, और इसीलिए क्यूप्रम का हैज़े से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। और क्यूप्रम के हैज़े और असहाल की गलत ट्रीटमेंट से मुस्तकिल एपिलेप्सी भी हो जाती है। और रवा में एक केस का मुतालिक तो मुझे यकीनी तौर पर इल्म है कि एपिलेप्सी थी बच्चे को, उसकी जब मैंने हिस्ट्री ली तो पता चला कि इसको हैज़ा हुआ था जिसको डॉक्टर्स ने सप्रेस कर दिया था, जिसको क्योर कहते हैं, क्योर कर दिया था। और इसकी एपिलेप्सी का ओरा हमेशा पेट से शुरू होता था, माउथ ट्विचिंग होती थी एक, और उसके बाद फिर वो बढ़ के एपिलेप्सी बन जाती थी। उसको मैंने क्यूप्रम दी, उसमें तो क्योरेटिव था बिल्कुल, फिर कभी दोबारा तकलीफ नहीं हुई। तो वो बीमारियां जो किसी वक्त किसी गलत इलाज की वजह से दब गई हों और जिस्म को उनकी शफा में हिस्सा लेने का मौका न मिला हो, उनका अगर आप ट्रेस बैक कर सकें तो किसी कम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं है। उस दवा तक पहुंच जाएं जिसकी अदम इस्तेमाल के नतीजे में एक बीमारी मुस्तकिल करार पकड़ गई या शक्लें बदल ली उसने, उस दवा से शुरू करें तो वो ज़रूर ठीक हो जाएगा। इस ज़माने में मैंने आपको बताया था नज़ले के बाद क्रॉनिक केसेस होते हैं, उनके आगाज़ का अगर पता चल जाए तो फिर वो ज़्यादा आसानी से हल हो जाते हैं। मैंने कहा पोटेशियम परमैंगनेट मंगवाई कि नहीं तुमने ऊंची ताकत में? काली परमैंगनेटम मंगवाओ ऊंची ताकत में, क्योंकि मुझे ये पता है कि इससे शुरू हुआ था, पोटेशियम परमैंगनेट से। पहला नज़ला जो मुझे कॉन्शियसली याद है, जिसने फिर अगर पीछा छोड़ा तो फिर दोबारा आया उसी जगह से, और वो शुरू हुआ था लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, यहाँ से। तो अब भी जब नज़ला का आके कुछ देर ठहर जाए तो यहाँ स्पॉट में वीकनेस पैदा हो जाती, नज़र आती है साफ। तो मेरा ख्याल है मैं ऊँची ताकत में खा के देखूँगा। उस ज़माने में हम शैम या मॉक फाइट्स किया करते थे, यानी यूँ झूठ मूठ की लड़ाइयाँ, उनमें मगर ऐसी झूठ मूठ की थी कि चोटें भी काफ़ी लगा करती थी। लकड़ी की तलवारें, और तलवार जब तक टूटे ना लगती भी थी दूसरे को, लकड़ी भी काफ़ी काटती है। और इसमें राख में पोटेशियम परमैंगनेट मिलाकर वो छटे देने, उसे बड़ी सख्त छींकें आती थी, और मुझे उन्होंने दवाई बनाने पे लगाया हुआ था और वो बनाते बनाते ही मेरा हाल बिगड़ गया था, क्योंकि राख में उसको, राख तो बड़ी जल्दी उठती है, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट को घोटते थे ना जब, तो बड़ी धांस उठती थी। और वो काफ़ी सारे लड़कों के लिए, सारी टीम के लिए मैंने बनानी थी दवा। तो वो मुझे याद है डेफिनेटली, वो दिन था जहाँ से नज़ले का आगाज़ हुआ है। और बाद में मुख्तलिफ इलाज से ठीक हो जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ इसको रूट आउट करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट ऊंची ताकत में इस्तेमाल करके देखनी चाहिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या असर पड़ा इसका। ठीक है, इसलिए क्यूप्रम आवाज़ में अगर ज़रूरी हो और ना दी गई हो और मरज़ हट भी जाए तो क्यूप्रम
का बाद में देना ज़रूरी हो जाता है। और मेरा ख्याल है बाद में जब दिया जाए देर के बाद तो उसकी ताकत बढ़ानी चाहिए। ये मेरा तजुर्बा है कि गहरे केसेस जो माजी में दबे हुए हैं वहाँ वही छोटी ताकत काम नहीं आती जो उस वक्त काम आती थी, बल्कि गो हाई, बहुत ऊंची ताकत में दें तो उससे ज़्यादा इम्कान है उसको मरज़ तक पहुँचने का। इसके क्रैम्प्स में पोडोफाइलम के क्रैम्प्स भी याद रखें। पोडोफाइलम के क्रैम्प्स भी अंतड़ियों से ताल्लुक़ रखते हैं, उसी तरह वायलेंट होते हैं जिस तरह क्यूप्रम के हैं। पोडोफाइलम के क्रैम्प्स भी पाँवों पिंडलियों में उतरते हैं और अंतड़ियों में ऐसा महसूस होता है जैसे नॉट्स पड़ गए हैं। लेकिन पोडोफाइलम के क्रैम्प्स और इसमें फ़र्क यह है कि क्यूप्रम के क्रैम्प्स के साथ जो असाल हैं वो बिल्कुल मामूली हैं, उनकी मिक़दार थोड़ी, और असाल की अपनी ज़ात इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं खींचती जितना क्रैम्प्स और दीगर तकलीफ़ें हैं। लेकिन पोडोफाइलम में एकदम बड़ा स्पर्ट करता हो, जिस तरह क्रोटन का असाल होता है ना, खुला एकदम दस्त आएगा, और ये उसके क्रैम्प्स की तशख़ीस कर देता है कि ये क्यूप्रम का क्रैम्प नहीं है बल्कि पोडोफाइलम का है। और वाटरी स्टूल जो पोडोफाइलम का है ये हमेशा येलो होता है, वाटरी और येलो। उसकी ओडर भी बड़ी सख्त ड्रेडफुल है। बाद बच्चों में मैंने देखा है जिनको पोडोफाइलम के दस्त लगे हों, उनके साफ होने के बावजूद भी उनके पास जाओ तो अजीब ज़लील किस्म की बदबू होती है उसकी, उसको मैं बयान नहीं कर सकता। इसलिए किताबों में भी उसको ड्रेडफुल ही कहते हैं। हैपरसल्फ की खट्टी होती है मसलन, और सोराइनम में वो कैरियन की तरह की बू होती है, जैसे लाश सड़ रही हो। पैरोजेनम में भी, मगर इसमें ये बदबू जो है ये मैंने जैसा कि बयान किया ड्रेडफुल ही है बस। और क्यूप्रम में ट्विचिंग्स भी हैं और जर्किंग ऑफ लिम्स भी हैं। ब्लूनेस ऑफ स्किन इज ए मार्क्ड फीचर ऑफ क्यूप्रम। जिल्द जो है वो नीलाहट की तरफ माइल होती है हमेशा क्यूप्रम में। अगर स्कारलेट फीवर सप्रेस हो जाए तो उसके लिए अक्सर आपको क्यूप्रम की ज़रूरत पड़ेगी उसके बद असरात को मिटाने के लिए। स्कारलेट फीवर की तफसील क्या है डॉक्टर साहब? हमने तो कभी सुना नहीं आज तक स्कारलेट फीवर होता हो। जैसे ये नाम ही नहीं पता लगता होगा उसका। नहीं, मुख्तलिफ वायरस जो हैं इसके हिसाब से इन्होंने दिए हुए नाम, या बैक्टीरिया के हिसाब से, जैसे मीज़ल्स है, जर्म मीज़ल्स है, उनकी चूँकि डिफरेंट होते हैं और जो रैश है उससे फिर पता लगाते हैं। है तो उसी किस्म की इन्फेक्शस डिजीज़ होती है। हमारे इल्म में जितनी भी इन्फेक्शन आती रही हैं स्किन की, उनका आम जो स्किन के इलामतों के इलाज है वही करते रहे हैं। उसमें हो सकता है बात स्कारलेट फीवर्स भी हों। वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है ना जी, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होती है आमतौर पे, स्किन कंटेजियस नहीं होती हैं, इस वजह से वो इस तरह नहीं फैलती कि एक दूसरे से खांसी या नज़ला इस किस्म की दवाइयों से। सिम्टम सिंपल इनमें सब में सिम्टम जो हैं वो जैसे कहना चाहिए फ्लू के सिम्टम होते हैं, लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैशेस। वो तो मैं समझ गया हूँ जी सर। मैं कह रहा हूँ कि रैशेज जो हैं जनरल नॉन डिस्क्रिप्ट हैं जी, ओवरऑल एक क्लास से ताल्लुक़ रखती हैं। जी जी जी। और चूँकि होम्योपैथी में नामों की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, इलामतों की है, ठीक है, इसलिए उनमें हो सकता है बास किसी स्कारलेट की भी आ गए हों, हम इल्म नहीं मुझे। ठीक है। मगर कॉन्शियसली ये मुझे याद नहीं कि ये स्कारलेट का फीवर का है और इसका इलाज किया हो। क्यूप्रम में और इसमें क्यूप्रम में भी मेटास्टेसिस पाया जाता है। मेटास्टेसिस का पता क्या होता है? कई दफ़ा बता चुका हूँ। हाँ? हमारे तो और पता नहीं डिफरेंट होगा नहीं, टर्मिनोलॉजी। वही है, दूसरी जगह फैल जाना बीमारी का। एक बीमारी का एक उज़्व को छोड़कर जी, दूसरे इज़्म में मुंतकिल हो जाना। एक तो ये होता है कि एक जगह सप्रेस करो, बीमारी कहीं और है, उसको मेटास्टेसिस नहीं कहते।
جلد کو آپ نے جلد سے ایگزیما دور کیا ہے تو لنگس پہ حملہ کر دیا، ناک نزلہ ٹھیک ہوا تو لنگس پہ حملہ ہو گیا، یوٹرس پہ حملہ ہو گیا. اس کو میٹاسٹاسس نہیں کہتے. میٹاسٹاسس بیماری کا انتقال ہے از خود، کسی بیرونی اثر سے بھی بعض دفعہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایک نارمل ہے. مثلا ممز جو ہیں وہ اعضاء میں دوسرے اعضاء کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں، اور ٹائیفائڈ بعض دفعہ فالج بن کے گرتا ہے کسی حصے پر، ٹھیک ہو جاتا ہے مگر دوسری جگہ ظاہر ہو جاتا ہے. اس لیے بعض دفعہ بیماری اپنی شکل بدل جاتی ہے اور میٹاسٹاسس پہچانا نہیں جاتا. بعض دفعہ اسی شکل میں ممز کی طرح ہی سوج بھی پیدا کرے گی، وہی علامتیں ساری ممز کی، لیکن ان گلینڈز کی وجہ کسی اور گلینڈ میں ظاہر ہوئی. تو کیوپرم بھی میٹاسٹاسس کی ایک دوا ہے. اسی لیے میں عرض کر رہا تھا کہ جو ایلوپیتھی میں ہم یوز کرتے ہیں نا یہ ٹرم، وہ اصل جگہ چھوڑتا نہیں ہے، وہ روٹ وہ ہوتی ہے. مثلا پروسٹیٹ کی بون میں یہاں بھی یہی ہے. اچھا، اصل جگہ اور انفیکشن کی کاز رہتی ہے وہیں، ٹھیک، سینٹر وہیں رہتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی سیکنڈری ٹائپ کی چیزیں ٹھیک، دوسری جگہ پیر ہوتی ہیں درست، اور اس سے نظر ہٹ جاتی ہے، دوسری طرف ظاہر پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ تو درست ہے. یہی اسی طرح ہومیوپیتھی میں بھی یہی ٹرم ٹھیک ہے. ہے. اس لیے جب ہم کہتے ہیں میٹاسٹاسس میں، یعنی ممز کے میٹاسٹاسس میں اب پلسٹیلا دیں مثلا، تو پلسٹیلا لوور پارٹ سے واپس وہاں بھیجے گی. اگر سینٹر نہ ہو تو کیسے بھیج سکتی ہے؟ ٹھیک، اس کا مطلب ہے کہ وہاں قابو پا لیا ہے جسم نے، اور اصل جگہ جہاں دبی ہوئی تھی کسی وجہ سے وہ ابھر آئی ہے دوبارہ. اٹ آلویز ریٹرنز ٹو اٹس پلیس آف اوریجن. سمجھے؟ ٹھیک ہے جی. یہ جو اسپیزمز ہیں اس کی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ اس کو دمے میں بھی مفید ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی ڈسکرپشن یہ ہے کہ لیرنگز کا اسپیزم، تمام ریسپیریٹری سسٹم کا اسپیزم، یعنی سانس کی نالیوں کا ہر قسم کا اسپیزم، اور چائلڈ بعض دفعہ یوں لگتا ہے جیسے چوک کر گیا ہو اور اگلا سانس نہیں آئے گا. اس صورت میں اس کا استعمال کیوپرم کا بہت اہم ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں گا، فلیکشن اور ایکسٹینشن باری باری. ایک دفعہ یوں کر کے ہو جائے گا، فلیکس ہو جائے گا، پھر ایک دم ایکسٹینڈ ہو جائے گا ہاتھ، اور یہ اتنے زور سے ہوتا ہے کہ درد سے چیخیں نکل جاتی ہیں مریض کی. انگوٹھا نارمل ہے، ایک دم یوں ساتھ لگ جائے گا اور اس درد سے چیخ لگے گی، پھر بغیر وجہ کے اچانک، وجہ تو ہوگی لیکن اس کے علم میں نہیں، یوں کر کے سیدھا اکڑ جائے گا. بچوں میں بعض ٹانگیں بھی حصہ کرتی ہیں، ایک دم سوگر کے اکٹھی ہو جاتی ہیں، پھر یوں زور سے باہر نکلتی ہیں. یہ جو کیس ہے ٹپیکل کیوپرم کا ہے. کیوپرم میں یہ دونوں باتیں پائی جاتی ہیں بیک وقت. فلیکسر مسلس پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے، ایکسٹینسر مسل پہ بھی، جس سے ہاتھ کھینچتے ہیں ان پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، جن سے کھولتے ہیں انگلیوں یا اعضاء کو ان پر بھی اثر انداز ہوتی ہے. اگر برین کی طرف میٹاسٹاسس ہو جائے، جو خاص طور پر گرمی کے دوران ہوتا ہے یا گرم چیزوں کی وجہ سے، اس میں کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو یاد آئیں گی نمایاں طور پر؟ جسمانی بیماری، خصوصاً کھانے کی نالی کے اندر کی، اگر وہ سپریس ہو جائے اور دماغ کی طرف حملہ ہو جائے، اس کو کون کون سی دوائیں آپ کو یاد آئیں گی؟ ایگزیکٹلی رائٹ، ماشاء اللہ. تو میں انتظار ہی کر رہا تھا تمہاری طرف سے آواز آئے گی. ایتھوزا اور کیوپرم دونوں میں یہ قدر مشترک ہے. اس میں ایتھوزا میں اور اس میں صرف اتنا فرق ہے، دو فرق ہے بلکہ. ایتھوزا معدے سے تکلیف کو ہٹاتی ہے، یعنی ایتھوزا کا مریض وہ ہے جس کی معدے کی تکلیف بند ہو جائے
اور دماغ کی شروع ہو جائے، اور ایسا گرمیوں میں ہو خصوصیت سے، تو نیم پاگل سا ہو جاتا ہے بچہ، اور جب تک اس کو ایتھوزا نہ دیں گے اس وقت تک وہ بعض دفعہ مستقل پاگل پن کی حالت ٹھہر جاتی ہے، آگے مجلول سا بچہ ہوگا۔ یہ جو ایتھوزا ہے یہ اس کو ریٹرن کرتی ہے پہلے معدے کی طرف، پھر معدہ ٹھیک کرتی ہے، اور معدے کی طرف جب ریٹرن کرے گی تو الٹیاں شروع ہو جائیں گی، اور دودھ پیا اور فوراً نکل گیا، یہ ٹپیکل علامت ہوتی ہے، اسہال نہیں بلکہ الٹیاں، یہ ایتھوزا ہے۔ اور کیوپرم میں انتڑیوں کی سوزش اگر دبا دی جائے تو پاگل پن ہو جاتا ہے بعض دفعہ، نچلا حصہ ہے نسبتاً، اس لیے جگہ کا فرق ہے، پہچاننا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیوپرم میں کچھ نلاہٹ پائی جاتی ہے مریض کے چہرے پر، اور بعض دفعہ اسپیزم اس کی انگلیوں کے اور ہاتھوں کے بھی شروع ہو جاتے ہیں، تو کیوپرم اپنی عمومی پہچان سے پتہ چل جاتا ہے، اور ایتھوزا کے ساتھ اس کا فرق ہے نمایاں اس لحاظ سے۔ گرمی کی ایگراویشن دونوں میں ویسے مشترک ہے۔ بعض مریضوں کو ایپیلیپسی یعنی مرگی کے بعد سخت سر درد کا دورہ پڑتا ہے، یہ ایسا دیکھنے میں آتا ہے اکثر نہیں، یعنی بہت سے مریضوں میں۔ اس سر درد کا علاج کیوپرم ہے، نہ بیلاڈونا نہ کوئی اور چیز۔ ایپیلیپٹک کو اگر ہوش آنے کے بعد سر درد ہو تو بلا تاخیر اس کو کیوپرم دینی چاہیے، اور بہت ہی ریلیونگ ہے، بجائے اس کے کہ کوئی گہری ڈرگ دی جائے جو اس کو غافل کر دے۔ یہ وہ اسپیزم دور کرتی ہے جس کے نتیجے میں وہ ہیڈک ہو رہی ہے۔ آنکھ میں بھی اس کی ٹویچنگ ہوتی ہے، اور اس کے ارد گرد کے مسلز میں بھی۔ کیوپرم میں ایک صرف یہ بہت دواؤں میں پایا جاتا ہے، آنکھ کا ٹویچ کرنا ایک دم یوں کر کے اسپیزم سے ہوتا ہے، جسے آنکھ پھڑکنا بھی کہتے ہیں۔ لیکن کیوپرم میں جو امتیازی چیز ہے وہ صرف یہ ہے کہ کیوپرم میں ایک دفعہ دائیں میں شروع ہو رہی ہے تو پھر بائیں میں چلی جائے گی، پھر بائیں میں بعض دفعہ شروع ہوتی ہے تو دائیں میں چلی جاتی ہے، یعنی ضروری نہیں کہ دائیں سے بائیں حرکت کرے یا بائیں سے دائیں، کسی طرف سے بھی جب وہ اسپیزم شروع ہوتا ہے تو کیوپرم میں بسا اوقات وہاں ٹھہرتا نہیں بلکہ دوسری آنکھ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، بیک وقت دونوں نہیں پھڑکتی۔ یہ بتا رہا ہے کہ یہ کیوپرم کا کیس ہے۔ کنورشنز کے بعد اگر پیرالیسس ہو جائے جو بار بار کی کنورشنز کے نتیجے میں ہو تو اس میں بھی فوری دوا کیوپرم ہونی چاہیے، اور اگر یہ مستقل فائدہ نہ دے سکے تو پھر اس کے بعد اس کو پلمبم کی باری آتی ہے۔ پلمبم میں بھی کنورشنز فائلج میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ بعض بیماریاں جن کو ہم ہومیوپیتھی میں کہتے ہیں ڈراپ رسٹ، ایک آدمی کی رسٹ ہی ڈراپ ہو جاتی ہے، اس کا آغاز عام طور پر اسپیزم سے شروع ہوتا ہے، اسپیزم ہوا، مڑ گئی، پھر سیدھی ہو گئی، پھر آخر وہیں آ کے ٹھہر گئی۔ اگر اس میں ریجیڈیٹی ہو اور ارد گرد ایسی علامتیں ہوں جیسے وہ حصہ مر رہا ہے، یہ پلمبم کا فالج ہے، اور پلمبم اونچی طاقت میں کبھی کبھی دے دی جائے تو اس کو دوبارہ ریوائیو کر سکتی ہے اللہ کے فضل سے۔ اور جو فوری فالج ظاہر ہوتا ہو اسپیزمز کے بعد، کنولشنز کے بعد، اس میں کیوپرم پہلے دینی چاہیے۔
मैंने आपको पहले भी बताया था क्यूप्रम की तरफ पहले ध्यान इसलिए ज़रूरी है कि इसका दायरा कार थोड़े वक्त के अंदर रहता है, इसलिए जल्दी ना दी जाए तो फिर लेट बेकार है और बाज़ मुस्तकिल डैमेज भी रह सकता है। तो दूसरी दवाएं हैं, ओपियम है या कोलम्बम वगैरह, ये बहुत लंबे अरसे तक भी कारआमद रहती हैं। क्यूप्रम लंबे अरसे के बाद कारआमद उस वक्त होता है जब मेटास्टेसिस के केसेस हों, जबकि बीमारी ने अपनी शक्ल बदल ली हो। उस वक्त चाहे आप 50 साल के बाद भी दें तो क्यूप्रम उसी ताकत में पहली बीमारी को बहाल कर देता है और दूसरी बीमारियों से निजात दे देता है। तो जब मैं ये बातें कहता हूँ तो इनमें तजाद नहीं है, आपको बारीक फ़र्क समझना चाहिए कि मसलन सर पे हमला हुआ है, किसी बीमारी का स्पेज़म हुआ है, टेम्परेरी ब्लाइंडनेस हुई है, इसमें क्यूप्रम का दायरा कार स्पेज़म से ताल्लुक़ रखता है, इसलिए स्पेज़म हट जाए तो हट गया, वो मुस्तकिल टेंडेंसी नहीं छोड़ता वहाँ। यानी ब्लाइंडनेस इज़ नॉट ए परमानेंट फीचर, वो उस स्पेज़म से ताल्लुक़ रखती है जिसको क्यूप्रम खोल देगा और बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर वक्त पे ना खोला जाए तो फिर हो सकता है कि वो उस हिस्से की डेथ का, मौत का मूजिब बन जाए। वो फिर किसी दायरा इख्तियार में भी नहीं रहती चीज़। जहाँ नर्व्स मर जाएं वो हाथ से निकल गई। क्लॉटिंग में बाज़ वक़्त थोड़ा थोड़ा खून दूसरी जगहों से जाना शुरू हो जाता है, इसलिए देर में भी इलाज हो जाता है, वरना अगर ब्लॉकेज कंप्लीट हो तो फिर वो शख्स बच नहीं सकता। जब कहते हैं ना क्लॉटिंग हुई और फिर दोबारा ठीक हो गया, उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने इंतज़ाम बनाया हुआ है, बहुत बारीक बारीक खून की रगें मुख्तलिफ सिमतों से उस मऊफ हिस्से की तरफ जाती हैं। जब एक बड़ी आर्टरी बंद हो गई तो वो जो छोटी छोटी रगें थीं वो टेक ओवर कर लेती हैं, और बाज़ दफ़ा नर्व्स भी बनकर शूट करके वहाँ पहुँच रही होती हैं उस तरफ ब्रिज करने के लिए। जब तक ज़िंदगी के आसार हैं जिस्म पूरी जद्दोजहद करता है। ऐसी सूरतों में वो पोपियम और ब्लम्बम वगैरह मुफीद होती हैं। अगर मर जाएं तो फिर कुछ नहीं, नर्व्स मर गए तो ख़त्म। जैसा कि मैंने कहा, सवाल इसके कि दूसरी नर्व्स टेक ओवर करने के लिए चलती हैं। आँखों पर यह तजुर्बा हुआ है कि एक हिस्से की आँख की नर्व मरी है तो दूसरी तरफ से नर्व चल के उसकी जगह दिमाग के उस हिस्से में पहुंच के कनेक्ट करने लगी है उसको, और उसके बाद जो विजन में ख़राबी पैदा हुई थी वो दूर हो जाती है। डॉक्टरों ने ट्रेस किया है नर्व का शूट करना, जिस तरह एक जड़ निकल कर एक तरफ हरकत कर रही होती है, उसका बाज़ दफ़ा टेक ओवर नर्व निकलती है और हरकत करते करते दिमाग के उस हिस्से से ताल्लुक़ कायम करती है। तो ये अल्लाह ताला की कुदरतें बहुत अजीब हैं। सिर्फ आपको ये पता लगना चाहिए कि इनको पैगाम पहुँचाने के लिए होम्योपैथिक कौन सी दवा कितनी पोटेंसी में चाहिए। उसकी वजह हमें क्या पता क्या वजह है। अगर बिल्कुल बंद हो गई हो कोई आर्जी रोग के नतीजे में, जो आर्जी रोग ही रहे, मुस्तकिल असाब न मरे हों, तो वो ठीक हो सकती है। छिलके उतर जाते हैं बाज़ दफ़ा आज खुद भी, शॉक के नतीजे में भी। बाज़ नर्व्स हैं जो काम करना छोड़ दे हैं मगर मरी नहीं होती, कोई और आर्जी ब्लॉकर है जो काम उनको रोके हुए है, वो अगर दूर हो जाए तो चल पड़ती है। आँख ऐसी हमने देखी है बहुत सी मगर कई केसेस में देखा है मैंने कि देर की आँख की ख़राबी। मैंने एक कोर्ट मिसाल भी दी थी आपको, एक आँख जवाब दे चुकी थी कई साल से, और दूसरी आँख का ऑपरेशन हुआ। जब वो ख़त्म होने लगी तो यहाँ उनके अजीज़ों ने मुझे लिखा कि बड़ी फ़िक्र वाली बात है। उनको मैंने फ़ोन पे बताया कि फ़ोन पे फ़ौरन ये दवा दो, तो दवा दी। तो कुछ अर्से के बाद उनका ख़त आया है जो हमने रिकॉर्ड में रखा हुआ है कि डॉक्टर जैल नसीम ने उनका ऑपरेशन किया था। वो ये देख कर वो हैरान हुए कि वो आँख जो ज़ाया हो गई थी वो भी जाग गई और दोनों आँखों से नज़र आना शुरू हो गया। वहाँ से भी बीमारी हटी जो जिसको ख़तरा था, टोटल ब्लाइंडनेस का ख़तरा था, पहले भी उठ खड़ी हुई। साफ पता चल रहा है कि उसके असाब नहीं मरे थे, टेम्परेरी कोई था ऐसा सिलसिला, जैसे स्टन हो जाता है कुछ,
ऐसी भी बातें होती होंगी नर्व्स में, वरना मरी हुई नर्व्स तो जिंदा नहीं हो सकती। समझ गई हैं? इसलिए हमें ब्लाइंडनेस का कुछ पता नहीं किस वजह से हुई है, किस मेयार किस मकाम तक पहुंची हुई है। हर मरीज़ के लिए इलामतों से कोशिश करना ज़रूरी है, आगे फ़ायदा हो या ना हो तो अल्लाह का काम है। फिर आगे चलें। नेक्स्ट। I'm sorry, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप नहीं पढ़ा रहे हैं। ये जो लिड्स के क्लोजर है, ये तो आपके फैमिली में भी है ये साहब। अचानक लिड ड्रॉप हो जाते हैं, है ना? उनको क्यूब्रम देके देखना। मैंने जो पहले दिया था वो उससे फर्क पड़ा था कुछ? नहीं पड़ा था। काफी देर बेचारे आते रहे, फिर थक गए। और है वो बड़ी मुसीबत। आम आदमी तो देखता नहीं हो करके, तो देखना पड़ता है सिर पीछे करके। बड़ी ऑकवर्ड होता है वो बेचारे के लिए, देखने वाले के लिए भी, उसके लिए भी, दोनों के लिए। यूं करके ये ऊपर जाता ही नहीं छप्पर, हाफ क्लोज होता है। बाद दफा एकदम स्नैप करके तो गिर जाता है। ये जो स्नैपिंग वाला गिरना है, अचानक गिरना, उसमें क्यूब्रम अच्छी है। ठीक है? और दूसरों में गालिबन प्लम्बम काम आएगी, वो ट्राई करके देखें। जी कॉस्ट्यूम दे चुका हूँ मैं सब, कुछ नहीं हुआ। जिस मरीज़ की आप बात करें गालिबन वो ग्रेजुअल एकदम नहीं था, ग्रेजुअली मुझे पता वो ग्रेजुअल था जी, इसीलिए उसके लिए क्यूब्रम नहीं हो सकता। मैंने कहा इनको क्यूब्रम ये इलामा जो है ना कि सडन है। लिड्स स्पेस्मोटिकली क्लोज्ड, ये और चीज है। मैदे में भी स्पेज़म के लिए तशन्नुज होता है उर्दू में, और जो ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव लफ्ज़ है ना, जो तस्वीर खूब खींचा, वो कुड़ल पड़ना कहते हैं उसको पंजाबी में। कुड़ल पड़ गया है ना, कुड़ल में दायरा भी बड़ा होता है, काफ़ी जगह है। क्यूब्रम में एक और अजीब किस्म का स्पेज़म पाया जाता है जो वक्त का बड़ा पाबंद है। हर 2 हफ्ते के बाद स्पेज़म का दौरा पड़ता है। वो 2 हफ्ते का साइकिल क्यों चला है हम नहीं जानते, मगर अंदर ज़रूर कोई ऐसी चीज़ होगी जो रोटेशन में जब 2 हफ्ते तक पहुंचती है तो वहाँ क्लिक कर जाती है, फिर वो आगे गुजर जाती है। तो कई किस्म के अंदरूनी क्लॉक्स अल्लाह मियां ने बनाए हुए हैं, और रेगुलरली वो क्लॉक्स बाज़ दफ़ा तो इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक्स की तरह प्रीसाइज काम कर रहे होते हैं। परिंदों में इस पर बहुत रिसर्च हुई है। वो जो एनुअल उनके साइकिल्स आते हैं ना कि उन्होंने अब जनूब की तरफ हरकत करनी है, अब शिमाल की तरफ हरकत करनी है, इतना तो उनका दिमाग होता ही नहीं कि वो सोच लें कि अब ये हो गया है। तो सब कंप्यूटराइज्ड है उनके अंदर। चुनांचे उन्होंने उनको अंधेरों में बिल्कुल डिसओरिएंट कर दिया। ऐसे केजेस बनाए जिनकी कोई डायरेक्शन का उनको पता नहीं था, और अंधेरों में मुख्तलिफ वक्तों में उनकी शक्लें भी बदलते रहे ताकि एक जगह बैठने की आदत दूसरी जगह में तब्दील ना हो। और जब वो साइकिल आया है तो बिला इस्तिस्ना वो सारे केजेस के उन हिस्सों में चले गए जो जुनूब की तरफ थे, क्योंकि उनकी जुनूबी हरकत के दिन आ गए थे, उस तरफ सिमट गए। जिसे पता चला कि अल्लाह ताला ने उनके अंदर कोई घड़ी बनाई हुई ऐसी कि उस घड़ी का हमें नहीं पता लगा अभी तक, इंसान को कुछ पता नहीं कैसे काम करती है, लेकिन वक्त पे चलती भी है, अलार्म भी बजाती है और अज खुद सिमत भी बताती है। आज तक ये नहीं समझ सके कि जानवरों को सिमत का कैसे पता चलता है, क्योंकि इंसान अपनी पूरी होश के साथ फिजा में उड़ के किसी एक सिमत में उसको कहें कि जाओ, और ऊपर से बादल भी हों और सितारे भी ना हों, सूरज का भी पता ना चले, तो नामुमकिन है कि इंसान उस जहत में चले और बगैर गलती के चले।
जिस जहत में उसने जाना है। तो ये जो परिंदे हैं इनमें और इसमें भी शायद की मक्खी वगैरह में भी सिमत की जो सेंस है, सिमत को मालूम करने का अंदरूनी निज़ाम बहुत ही बारीक दर बारीक है, जिस तक अभी तक इंसान की रसाई नहीं हुई, लेकिन इल्म में आ चुका है कि जानवर जो काम करते हैं इनके अंदर सिमत की वो मौजूद है एक सलाहियत, और हैरत अंगेज सलाहियतें हैं। छोटी छोटी जो होती है ना टर्न्स, छोटे छोटे परिंदे यहाँ के पिदियाँ वगैरह, ये कई हज़ार मील चलती हैं और इनको पता है कहाँ जाना, हमेशा वहीं निकलेंगी। जिस ओएसिस में इन्होंने बसेरा करना है कुछ देर के लिए, बड़े बड़े रेगिस्तान के सफ़र तय करती हैं ये छोटी छोटी पिदियाँ जैसी, और जिस ओएसिस में कभी जाके ठहरी थी वहाँ जो आदमी वॉच करे, इनको अगर पहना दिया जाए कोई रिंग वगैरह, तो एन उसी ओएसिस में वापसी पे भी कदम रख कर फिर गुजरेंगी आगे, और अगले साल फिर उसी ओएसिस पे जाकर अपना बसेरा करके जो ग़िज़ा वहाँ मिलती है खा के पेट भर के अगले सफ़र की तैयारी। हर सफ़र से पहले कुछ पेट भरती हैं, और चूँकि सर्दियों में इनको यहाँ ग़िज़ा कम मिलती है, नहीं सॉरी, बात ऐसी हैं जिनको सर्दियों में यहाँ ग़िज़ा मिलती है, जो गर्मियों में सफ़र शुरू करती हैं आगाज़ पे, उन पे सर्दियों में चर्बी चढ़ चुकी होती है, वो फिर सारी पिघल जाती है, रास्ते में ठहर के इनको थोड़ा सा रिफ़िल करना पड़ता है। लेकिन जो वक्त है वो उसका भी इनको पता है कि इससे ज़्यादा हमें यहाँ नहीं ठहरना, ये नहीं कि वहाँ ठहर ही जाएँ। अगर 24 घंटे का स्टॉप मिला हुआ है इनको कुदरत की तरफ से, तो 24 घंटे के अंदर ज़रूर चल पड़ेंगी, चाहे रास्ते में भूख से निढाल होकर मर मर के गिरना शुरू हो जाए, लेकिन चलना ज़रूर है। जो क्लॉक है वो अपना काम करता है। तो ये सारी बातें होम्योपैथिक तरीक़ पर यकीन बढ़ाने के लिए ज़रूरी हैं, और इसलिए ज़रूरी हैं कि ये इल्म हो कि होम्योपैथी कोई इत्तफाकी हादसा या कोई तमाशा नहीं है, बल्कि उस खुदा की तरफ से एक निज़ाम जारी है जिसने ये सारी चीज़ें बनाई हैं, जिसने इतना बारीक निज़ाम बना के रखा हुआ है, उस तक रसाई का कोई निज़ाम ज़रूर बनाया होगा उसने, वरना ये अजीब बात लगती है कि इतना हैरत अंगेज़ निज़ाम दफन कर दिया और उससे इस्तेफादे का कोई निज़ाम न बनाया हो। बस ये होम्योपैथी भी एक किस्म की एक इल्हामी है जो इस दौर में खुदा ताला ने बनी नौ इंसान के लिए जारी की है। तो आपने पैगाम सही देना है, फिर इंशाअल्लाह बाकी काम जिस्म करेगा। जवान लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन के वक्त जो क्रैम्प्स होते हैं अक्सर तो इसमें इस हिस्से में और कमर में यहीं मौजूद रहते हैं। जिनके क्रैम्प्स पिंडलियों में चले जाएं उनको क्यूप्रम ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि पिंडलियों के क्रैम्प्स जो पेट के दायरे में कहीं शुरू होते हों और पिंडलियों तक पहुँचें, इनका ख़ास क्यूप्रम से ताल्लुक़ है, क्योंकि इसमें भी पेट की बीमारी पाँव उनमें चेर मुंतकिल हो जाती है पिंडलियों में। लेकिन इसके साथ कहते हैं कुछ न कुछ इसमें वॉमिटिंग और बाज़ दफ़ा लूज मोशंस, मगर हल्के थोड़े थोड़े, ये भी अकम्पनी करते हैं। वो एपिलेप्सी जो हमेशा मेंसेस के दौरान चमक उठे, उसका भी क्यूप्रम से ताल्लुक़ है, क्योंकि क्यूप्रम में मेंसेस के दौरान एपिलेप्टिक्स स्पेज़मोडिक बीमारियां पैदा हो जाती हैं, और वो एपिलेप्सी जिसमें नए चांद के चढ़ने से तकलीफ बढ़े, उसमें सिलिशिया मुफीद है। अक्सर वो बीमारियां जिनका नए चांद से ताल्लुक़ हो, उनमें सिलिशिया का कोई
उनके साथ सिलिशिया का कोई ताल्लुक पाया जाता है। इसलिए सिलिशिया की एक ऊंची ताकत देना अगर क्यूरेटिव ना भी हो तो बाकी दवाओं के लिए मुमिद बन जाता है। अब ड्रोसरा शुरू करते हैं जो इससे मिलती जुलती दवा है अपने स्पेज़म के लिहाज से। ड्रोसरा के साथ आपको क्या याद आता है बताएं जी? काली खांसी। हाँ, कुछ और भी याद आता है कभी? खांसी आती है ना, और तो कुछ नहीं आता। क्या ना, वो ठीक है। मेरा मतलब है कि ड्रोसरा का इस्तेमाल अमूमन आप खांसी ही में करते हैं और ड्रोसरा के लफ्ज़ के साथ जो इल्हाम बंदी हुई चीज़ है वो खांसी ही है, ये मैं बताना चाहता हूँ। लेकिन असल में ड्रोसरा को स्पेज़म से बांधना चाहिए, इसलिए उसका दायरा कार इस नए ताल्लुक़ की वजह से ज़्यादा फैल जाएगा। आपको सिर्फ खांसी पे ड्रोसरा याद नहीं आएगा बल्कि बाद दूसरी बीमारियों में भी ड्रोसरा याद आएगा और फिर काम भी आएगा। उनमें एक एपिलेप्सी है, समझे हैं? इसमें जब स्पेज़म के नतीजे में इसको कहते हैं एपिलेप्टिक फॉर्म स्पेज़म्स, यानी बाज़ दफ़ा एपिलेप्सी ना भी हो तो जो बेहोशी के दौरे हैं वो एपिलेप्सी से मिलते जुलते हैं। इनमें जब मरीज़ उठता है तो उसको क्यूपरम की तरह सर दर्द नहीं होती लेकिन एंग्जाइटी होती है, बहुत सख्त वो फिक्रमंद और बेचैन होता है, कुछ हो गया है, कुछ होने वाला है। इस किस्म की बेचैनी के लिए जो एपिलेप्टिक तरस के मरीज़ को होश में आने के बाद हो उसमें ड्रोसरा चोटी की दवा है। इसलिए मिलती जुलती इलामतों में भी कोई ना कोई फ़र्क करने वाली इलामत भी होती है, उसे अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेना चाहिए। ड्रोसरा को औरतों की वो जो मेनोपॉज की बीमारियां हैं उनमें भी इस्तेमाल करके देखना चाहिए, क्योंकि बहुत मिलती है ये मेनोपॉज की इलामतों से। फ्लशेज ऑफ हीट और सडन सर्ज ऑफ ब्लड टू सम ऑर्गन्स, और फिर उसके नतीजे में जो बेचैनी या दूसरी तकलीफ़ें हैं ये सब ड्रोसरा में पाई जाती हैं। अकेले रहने का खौफ और दूसरों पर शक, यहाँ तक कि करीबी दोस्तों पर भी शक हो, ये किस किस दवा में नुमाया पाया जाता है? क्यों भाई? फौजी आप अपने अब्बा मम्मी के सामने अपने कर्तव्य दिखाओ ना ज़रा, ये भी हैरान हो देख के कि तुम्हें क्या कुछ नहीं आया। है? कोई है सस्पिशन में? चोटी की दवाएं कौन कौन सी हैं? लेक्सिस, सिर्फ लेक्सिस नहीं, सांप अक्सर सस्पिशियस हैं और उनके जहर में भी सस्पिशन पाई जाती है। निकलते हैं नहीं करके देखते हैं चारों तरफ, हर चीज़ पे शक है कहीं। इसलिए सांप को बहुत जल्दी ये ख़तरा पैदा होता है कि मुझ पर ही हमला करने लगा है। सांप कभी भी बग़ैर इस ख़तरे के हमला नहीं करता, इसलिए अगर सांप रास्ते में नज़र आए और आप आराम से रास्ता छोड़ दें तो आपके पीछे नहीं भागेगा। अगर उस पर चढ़ दौड़ें आप, पता ना लगे, फिर वो हमला करता है और इस सस्पिशन से कि फिर इसने मुझे मारना था, और फिर वो पीछा नहीं छोड़ता। फिर आप भागें जो मर्जी करें, सांप से तेज़ नहीं आप भाग सकते। सांप घोड़ों को भी पकड़ लेता है। इसके भागने का तरीका पता क्या है? हैं? इस तरह के मुंह पे सीधा कभी आप मुड़ के भाग सकी हैं? नहीं, सीधा ना जाए इंसान ना, बिल्कुल सांप सीधा जाएगा ना, बिल्कुल नहीं। लेफ्ट टू राइट नहीं, सांप किस तरह दौड़ता है? उसके ना पाँव बेचारे के ना कुछ, दौड़ता किस तरह वो? पेट के बल
पेट के बल कभी दौड़ के देखें? साफ तो नहीं पेट तो है ना, बल भी है बढ़ते पेट में। ये इसकी जो है ना इलास्टिसिटी जिस्म की, वो इसको इस तरह कर देती है कि कई बल डाल देता है। ये बहुत सी जगहों से उठ जाता है और थोड़ी जगहों में ज़मीन पे टच करता है। जब वो सीधा होता है एकदम, तो ज़ोर से उछलता है, उन जगहों से ज़मीन से किक लेता है जहाँ उसकी मजबूरी थी। वो अपने आप को सीधा करता है ना एकदम, तो उछल जाता है। और इस मूवमेंट के साथ जब वो किसी की पैरवी करे तो बहुत तेज़ रफ्तार हो जाता है, उछलता हुआ छड़पे मारता हो जाता है। और आमतौर पर जब रेंगता है तो यूं नहीं रेंगता, बल्कि दाएं बाएं बल डाल के रेंगता है। इधर किया, फिर वहाँ से सीधा वो यूं हो गया, फिर वहाँ से यूं। जिस तरह उंगली से नेफे में नाला डाला जाए ना, छोटे होते हमारे मुश्किल पड़ा करती थी, यूं यूं करके करना पड़ता था, उस तरह सांप चलता है जमीन पे। ठीक है। और अगली बात ड्रोसरा की। हाँ ठीक है। फ्लैशेज ऑफ हीट मैं बता चुका हूँ, ये ख़वातीन में अमूमन मेनोपाज के वक्त पैदा होते हैं, उनमें ड्रोसरा अच्छी है दवा। और अकेला और सस्पिशियस होना, अब एक चीज़ इसमें ड्रोसरा इस्तेमाल नहीं होती और वो होनी चाहिए, वो है करोसिव इचिंग। ऐसी खुजली जो जगह को खा जाए, जिस तरह तेज़ाब काम करता है, उस जगह से वो उखड़ने लग जाए, जल्द और ज़ख्म से पड़ जाए। हर वो दवा जो अंदरूनी तौर पर बलगमी झिल्लियों पर असरअंदाज होती है, वो लाजिमन जिल्द पर भी असरअंदाज हो सकती है। इस ताल्लुक़ को नहीं भूलना चाहिए। ड्रोसरा चूँकि अंदरूनी झिल्लियों पर हमला करने वाली दवा है, इसलिए अगर बैरूनी तरफ इसका रुझान मुंतकिल हो जाए तो बाहर हो जाएगी और अंदर को छोड़ देगी। तो दोनों जगह इसको देखना चाहिए। और वाक़तन जिल्द में भी मिलती है, इसलिए। लेकिन कभी मुझे याद नहीं कि मैंने कभी ख़ुद भी किसी जल्दी मरीज़ को ड्रोसरा दी हो। और होम्योपैथ भी मेरा ख्याल नहीं देते होंगे, मुझे शक है, लेकिन वो लेक्सिस वाला शक नहीं। वैसे एक अंदाज़ा गैस है। वजह यह है कि मैं काफ़ी ख्याल रखता हूँ इस दवा को वहाँ इस्तेमाल करके देखूँगा। लेकिन ड्रोसरा में कभी ख्याल नहीं आया था, आज आपको पढ़ाते वक्त ख्याल आया है कि है सही है। हमें इल्म है मुझे कि बीमारी, लेकिन एक तो बीमारी ने इतनी तवज्जो खींच ली है कि और कभी ध्यान ही नहीं जाता। इसलिए इसको आइंदा इस्तेमाल करके देखें। करोसिव इचिंग जिस बच्चे में हो और उसमें खांसी के स्पेज़म्स भी बड़े सख्त हों, पहले अगर रहे हों मसलन, उसको ड्रोसरा ज़रूर देनी चाहिए। और जिस तरह चाइना से नॉइस पैदा होते हैं कानों में, ड्रोसरा से भी पैदा होते हैं। लेकिन ड्रमिंग भी होती है इसमें। चाइना में ड्रमिंग नहीं होती, चाइना में सन्नाहटें, सनसनाहटें, आवाज़ें करके जिस जूम से पैदा होती हैं। लेकिन ड्रोसरा में धमक वाली आवाज़ें भी कानों में आती हैं। इसका क्यूपम की तरह कलाई और हाथ के स्पेज़म से भी ताल्लुक़ है। क्यूपरम में मैंने बताया ना आपको, और किस में है? लंबा और नेट में जी नेट्रम नेट्रोफास, बिल्कुल ठीक है। और रूटा में भी है। मगर ये जो आपने नेट्रोफास, बिल्कुल मैंने अभी पढ़ाया था कोई ऐसा, किसने याद किया रखा इसको? वेल डन, शाबाश। तो ये सारी दवाएं हैं, इनमें ये पहले सब याद आके कंफ्यूज करती हैं। फिर अगर आपको पता हो कि इनके अंदर फ़र्क क्या है, तो ज़रा सा गौर करें तो साफ अलग अलग दिखाई देने लगती हैं।
اور ایک بیماری تک، ایک دوا تک آپ پہنچ سکتے ہیں اگر عمومی طور پر مریض کو دیکھیں. یہ ڈروسا کا لگ رہا ہے آپ کو، یا نیٹرم فاسٹ کا ہے، یا کسی اور بیماری کا. اس میں کریمپنگ کا یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کو پکڑنے لگیں یوں تو کریمپ ہو جاتا ہے، زور سے ہاتھ لگائیں تو کریمپ ہو جاتا ہے. یہ خاص طور پر ڈروسرا سے تعلق رکھتا ہے. سمجھ گئے؟ کھانے کے بعد اگر لیرنگز میں اسکریپنگز ہوں اور کھانسی کھانے کے بعد خاص طور پر ہو تو اس میں ڈروسرا اچھی دوا ہے. یعنی ایک کالی کھانسی نہیں، میں عام کھانسیوں کی بات کر رہا ہوں. اس کی جو کھانسی ہے وہ ٹھنڈی چیزیں پینے سے بڑھتی ہے. کیوپرم میں نے آپ کو کھانسی بتائی تھی نا. اور ٹھنڈے پانی سے بڑھتی ہے، ٹھنڈ آرام آتا ہے. ہاں، ٹھنڈ سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک تضاد بتانا بھول گیا تھا. کیوپرم میں ٹھنڈی ہوا سے کھانسی ہو جائے گی، لیکن ٹھنڈا پانی پئیں گے تو آرام آ جائے گا. اور کوکس میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے، کوکس کیکٹائی میں، کہ کھانسی جو ہو کسی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے سے، یا ذرا سا پانی پیا ٹھنڈا کھانسی ہوئی، اس کے بعد اگر آپ تیز ٹھنڈا پانی دیں گے تو کوکس کیکٹائی کو بھی آرام آ جاتا ہے. اس میں بھی یہ کہتا ہے کہ پینے سے تعلق ہے مگر برعکس تعلق ہے. ٹھنڈا پانی پینے سے اگر کھانسی بڑھتی ہو تو پھر ڈروسرا پر غور کریں. اور دوسری کھانسیاں جو ہیں نا کیوپرم والی، اس میں یاد رکھنا یہ کئی دفعہ ٹھنڈی غذا، ٹھنڈا پانی ٹریگر آف کرتی ہے کھانسی، لیکن آرام بھی ٹھنڈی چیز سے ہی آتا ہے. گرم چیز سے پھر وہ اسپیزم بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اگر کھٹے کھانے سے کولک ہو جائے، پیٹ درد ہو جائے، تو اس میں ڈروسرا مفید ہے. ڈروسرا کا کھٹائی سے بھی تعلق ہے. ڈروسرا کا پتہ کیا ہوتا ہے؟ ڈروسرا یہ مجھے پتا ہے کہ مجھے ڈروسرا کی سب سے زیادہ ضرورت ان دنوں میں پڑا کرتی تھی جب ہمارے دیسی کیکر، ہمارے ربا کے دیسی کیکر پھلیاں لاتے تھے. تمہیں بھی یاد ہے؟ کھائی ہوئی ہے؟ اچھا. پھر کس کا خیال آیا؟ ہیں؟ گھر میں لگا ہوا تھا کیکر. ہاں، تبھی پھر کہاں لگا ہوا؟ گجرات میں؟ نہیں، ادھر گاؤں میں گولے کی میں. وہی گجرات ہی ہے نا، ڈسٹرکٹ گجرات میں راتی میں. گاؤں ہے نا. ہاں ہاں، وہاں لگا ہوا آپ کے گھر میں دیسی کیکر. اس کے کھانے کے بعد خوب کھانسیاں، کھیتوں میں ہوتے تھے تو باہر کھیتوں میں ہوتے نا، تو جاتے تو پھلیاں توڑ کے کھانسیاں ہوتی تھیں خوب کہ نہیں؟ ان دنوں میں جو کھانسیاں پھیلتی ہیں ان میں ڈروسرا بہت مفید ہے. ابھی بھی ربا میں ہوں گے لوگ کھاتے ہیں. بچوں کو بڑا شوق ہے اس کھانے کا. یہ کھٹی میٹھی پھلیاں بڑی مزیدار ہوتی ہیں، اور اس سے پھر یہ بات سمجھتے ہیں کالی کھانسی پھیلتی ہے اس زمانے میں، مگر پھیلتا کچھ ضرور ہے. یہ تو میرا تجربہ ہے. میں ڈوسا دیا کرتا تھا، مگر کالی کھانسی بعض سمٹمیٹک ہوتی ہے، بعض واقعتاً وبا پھیلتی ہے. وہ جو وبا والی کالی کھانسی ہے وہ بہت دیر تک پیچھا نہیں چھوڑتی، لیکن یہ جو سمٹمیٹک ہے جلدی ٹھیک ہو جاتی ہے. میرا خیال ہے اس کا تعلق بہت ہے اس سے، کیکر کی پھلیوں کا. اور ان دنوں کی وبا جو ہے وہ اس کی پھلیوں کے ختم ہونے کے ساتھ ہی عام طور پر ڈائی آؤٹ کر جاتی تھی. پیسا کی بچی کو یاد آ رہی ہیں کافی چیزیں بچپن کی اپنی. باقی چیزوں میں اتنی رسپانس نہیں تھی، پھلیوں پہ رسپانس ہے. ماشاء اللہ. سب سے زیادہ اریٹیبل اس کی جو ہے نا پچنگ، وہ اس میں ہے
सांस की नाली में। एक तो ऊपर का हिस्सा है ना, इसको क्या कहते हैं इतने हिस्से को? लेरिंग्स। हाँ, लेरिंग्स। लेकिन इसकी जो है वो नीचे लेरिंग्स, सांस की नाली, इसीलिए मैंने कहा है सिर्फ लेरिंग्स नहीं है, कुछ ऊपर तक कुछ नीचे तक इसका दायरा फैला हुआ है। इसलिए इचिंग जो है वो एक स्पॉट की बजाय इस सारे हिस्से में होती है और कहीं से भी स्पेज़म शुरू हो जाता है और वो स्पेज़म जो है बहुत तंग करता है। हर थोड़ी देर के बाद एकदम स्पेज़म का एहसास पैदा होता है और ऐसे लोग फिर वो दम रोक के बैठे रहते हैं। हमारे यहाँ बाज़ मरीज आते हैं मेरे पास, वो बात करने से पहले दम थोड़ा सा रोक के रखते हैं ताकि वहाँ वो आपस में लगे ना। जहाँ कोई चीज़ लगी वहाँ इरिटेशन शुरू हो गई। उसके लिए ड्रोसरा बहुत इफ़ेक्टिव है और इसका करोसिव एक्जिमा या करोसिव इरप्शन याद रखना। वहाँ जो मुस्तकिल बैठता है स्पेज़म, उसकी वजह इसकी ये आदत है कि जहाँ ड्रोसरा की इन्फ्लेमेशन हो वो सतही नहीं रहती बल्कि वहाँ कुछ निशान डाल जाती है, ये कुछ थोड़े से फटाव पैदा कर देती है और वो फटाव हैं जो मुस्तकिल इसकी याद रखते हैं। इसलिए ड्रोसरा ज़रूरी है शुरू में ही ऐसी खांसियों में जहाँ यहाँ एक अजाब किस्म का हर वक्त का उलझाव नज़र आए और जितना मर्जी आप खांसें वो मुतमिन करने की बजाय उस खांसी को और इरिटेट करता चला जाए, ये ड्रोसरा है। ड्रोसरा में जो एक तजाद है वो ड्रोसरा का नहीं बल्कि डॉक्टरों का तजाद है। इतनी बरक्स खबरें मैंने आज तक किसी दवाई के मुताबिक नहीं पढ़ी। यहाँ बाज़ डॉक्टर्स हैं जो इनके फेवरेट हैं, हमारे बर्मी साहब के। वो कहते हैं ड्रोसरा को जितनी दफ़ा मर्जी दोहराओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बाज़ हिंदुस्तानी डॉक्टरों ने डराया हुआ था हमें, कहते हैं ख़बरदार जो दोहराया उसको हाथ से मरीज़ निकल जाएगा। इसलिए मैं बेवजह ही एहतियातें कर कर के बेचारों को 30 में हफ्ते में एक दफ़ा देता था। और यहाँ जो डॉक्टर की मैंने पढ़ी है किताबें, वो मुझे अक्सर यहाँ के डॉक्टरों की किताब बर्मी साहब ही देते हैं। उसमें ड्रोसरा में पढ़ के हैरान लगे, बड़ा पॉजिटिवली उसने लिखा हुआ है कि इट बेयर्स रेपुटेशन वेल, बल्कि मुतालबा करती है कि बार बार रिपीट किया जाए। तो इसलिए करके देखें पर पता लग जाएगा क्या होता है। ठीक है। आधी रात के बाद की खांसी में भी ड्रोसरा मुफीद है। एस्मेटिक ब्रीदिंग जो बोलने से ज़्यादा बढ़ जाए, आमतौर पर मेरा ख्याल है सब दमे वालों को बोलने से तकलीफ होती है, ये कॉमन है। कोई ऐसी ख़ास ड्रोसरा की बात नज़र नहीं आती मुझे इसमें, लेकिन लिखा हुआ है बहरहाल। जो हुपिंग कॉफ है इसकी, उसका पैरोक्सिज्म, उसका दौरा 2 से 3 घंटे तक चलता रहता है इसका और निढाल हो जाता है बच्चा, लेकिन उसको वो सुकून का लम्हा नहीं मिलता जिसकी तलाश में इंसान खांसता है। और सोने के बाद आधी रात को ज़रूर फिर तकलीफ से आंख खुलती है। एक्सट्रीमिटीज़ में इसमें भी क्यूपरम की तरह स्पेज़म शात शुरू हो जाते हैं। पसीना भी आता है बहुत इसमें, इसलिए बहुत सी बातों में ड्रोसरा क्यूपरम से मिलता है, तभी मैंने दोनों को इकट्ठा रखा है। इनकी मुश्तरका अलामतें भी याद रखें और फ़र्क वाली भी। ड्रोसरा में पेट की उस किस्म की अलामतें नहीं हैं जो क्यूपरम में है, जिसमें दर्दनाक डायरिया हो और थोड़ा थोड़ा और स्पेज़म होते हों। ड्रोसरा में निलाहट नहीं आती चेहरे पर, और क्यूपरम की और बहुत सी ऐसी अलामतें हैं जो कि लाजमन एक्सट्रीमिटीज़ में स्पेज़म साथ शुरू हो जाए, ये भी नहीं पाया जाता। मगर पिंडलियों में बाज़ दफ़ा या जिस्म के बाद हिस्सों में वक्ती तौर पर तशन्नुज हो जाता है। ये मिलती जुलती अलामतें हैं, मगर अमूमन क्यूपरम और इसका फ़र्क अगर आप 1-2 दफ़ा पढ़ लें तो आसान हो जाएगा
کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور یہ ایسی دوائیں ہیں کہ اگر ایک کی بجائے دوسری دے بھی دی جائے تو کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچا ہی دیتی ہے. ٹھیک ہے کیوں جی ہوگی پھر ٹھیک ہے. یہ ہمارا مومن ہمیشہ صحیح علامتیں جو ہم نے پکی رکھی ہوئی ہیں اس نے بڑی ریگولیرٹی کے ساتھ. مٹھی یہ ہو جائے تو مطلب بس ختم. السلام علیکم. خدا حافظ. السلام علیکم.